Hello everyone, good morning. In this video, we are going to learn a new grammar topic, that is determiners. Determiners is a word used before a noun to indicate which things or people we are talking about. The words a, the, my, these, some, many, etc. are called determiners. Let's see some examples. He is a good boy. Here a is the determiner. The boy you met is my friend. Here the and my is determiners. I have some information about the accident. In this sentence, some is the determiner. This novel is very interesting. This is the determiner. There were many people at the station. So many is the determiner. So these are the determiners. All the italicized words are determiners and they limit the meaning of the nouns that follow them. तो ये determiners है जो मैंने बताया और वो क्या करते हैं, उनका काम क्या है? They limit the meaning of the nouns. Okay, let's go ahead. Kinds of determiners. Kinds of determiners. There are 9 kinds of determiners. First is predeterminers, second is articles, third is demonstrative, fourth is possessives, fifth is ordinals, sixth is cardinals or numerals, seventh is quantifiers, eighth is distributives, and ninth is interrogatives. These are the 9 types of determiners. Okay, predeterminers are all of, half, half of, both, double, twice, quite, rather, such, what, etc. Okay, so let's start with the predeterminers. Predeterminers are the words which occur before a determiner to limit the meaning of a noun. All the boys joined the race. All the boys joined the race. तो यहाँ पे द भी डिटर्मिनर ही है, उससे पहले जो डिटर्मिनर आता है उससे कहा जाता है प्री डिटर्मिनर्स. ठीक है, तो ही ड्रैंक हाफ ऑफ द मिल्क. हाफ ऑफ इज प्री डिटर्मिनर्स, द से पहले आया है. ठीक है, बोथ द बॉयज वेर प्रेजेंट. बोथ इज डिटर्मिनर्स, प्री डिटर्मिनर्स, द से पहले आया है. ठीक है, सो दीज आर द प्री डिटर्मिनर्स जो कोई ना कोई डिटर्मिनर से पहले आएगा. ठीक है, डिटर्मिनर उस सेंटेंस में होगा ही, पर उसके आगे भी जो डिटर्मिनर होगा उसे कहा जाएगा प्री डिटर्मिनर्स. क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट डिटर्मिनर, नेक्स्ट टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स. Articles you know very well, a and the. The article system in English consists of the definite article the and the indefinite article a or an. We can think of nouns in a specific or general way. When we refer to particular people or things or something that has already been mentioned or can be understood, we use the definite article the. ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर थिंग, पर्सन की बात कर रहे हैं या तो फिर हमने पहले से जिसकी बात कर ली है फिर से उसी की बात कर रही है, तब आर्टिकल द आता है. एंड वी रिफर टू सिंगुलर नाउन्स फॉर द फर्स्ट टाइम और रिफर टू थिंग्स इन अ जनरल वे, वी यूज द इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन. ठीक है, जनरल में अगर बात कर रहे हैं और सिंगुलर की बात कर रहे हैं तब ए या एन आर्टिकल आएगा. लेट्स सी द some rules for using definite article the. First is we can use the definite article before any common noun. Common noun से पहले article the आएगा. He threw the ball into the river. ठीक है. Next we use the definite article to refer to specific person या things. I want to meet the principal in the school. ये स्कूल के प्रिंसिपल को मुझे मिलना है. ठीक है, specific person. Then the definite article is used to refer to the things that are only one in the world. सिर्फ एक ही हो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, तो उसके लिए भी द का यूज करता है. ठीक है, एग्जाम्पल, मून एंड स्टार्स वेर शाइनिंग इन द स्काई. द मून, एक ही मून है. ठीक है, इसलिए द मून. नेक्स्ट, we use the definite article with the words such as school, university,
प्रेजेंट व्हेन वी आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर बिल्डिंग। पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात कर रहे हो तब हमें इस तरह से द का यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल। लेट्स सी एग्जांपल, दे विल विजिट द स्कूल ऑन मंडे। कोई पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहे हैं तब द स्कूल, ठीक है। देन द डेफिनेट आर्टिकल may be used with the countable nouns that are used in the singular to refer the things more general. If you break the law, ठीक है, लॉ को ब्रेक करोगे तो क्या होगा, ठीक है, you will be punished. He played the violin, यहाँ पे काउंटेबल नहीं अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है, हाफ एन आर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। नेक्स्ट, द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज टू रेफर टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी पार्ट्स के लिए भी द यूज होता है। स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर द लंग्स, लंग्स पार्ट ऑफ द बॉडी। ही कॉट हिम बाय द नेक, नेक इज द पार्ट ऑफ द बॉडी, इसलिए आर्टिकल द यूज किया। नेक्स्ट, द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड विथ टाइम एक्सप्रेशन, टाइम दिखाए तब। शी केम हियर इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में सुबह, ठीक है। सो टू स्पेसिफाई द टाइम ऑल्सो वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द। Now let's go ahead. Next point, we use the definite article before something that has already been mentioned. पहले से बता दिया गया हो और उसी के बारे में दोबारा बात करें तब the article लगता है। I met a man at the station. I met a man at the station. यहाँ पे एक पर्सन की बात कर रहे हैं एंड उसी पर्सन की दोबारा बात करें, द मैन, यही मैन बिलोंग टू तमिलनाडु, ठीक है। एक ही पर्सन के बारे में दोबारा बात की जाए तब आर्टिकल द यूज करना है। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट इज फॉलोड बाय अ रिलेटिव क्लोज एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। द मैन आई मेट एट द स्टेशन बिलोंग टू हरियाणा। यहां पर देख सकते हो द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट इज फॉलोड बाय अ रिलेटिव क्लोज। ये क्लोज कौन सा है, आई मेट एट द स्टेशन, वो कौन सा है, रिलेटिव क्लोज। तो तब हमें आर्टिकल द का यूज करना है। सो रिमेंबर दिस थिंग वेल। नेक्स्ट, द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड टू रिफर टू फैमिलियर थिंग्स वी यूज रेगुलरली, हर रोज यूज कर रहे हो वैसे। शी लुक्ड एट द सीलिंग, फिर सडनली द लाइट्स वेंट आउट, हर रोज यूज करते हो वैसे वर्ड्स के लिए भी द यूज होता है। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम। इट इज अ पॉपुलर म्यूजिक ऑफ द 1940s, स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल द। द डेफिनेट आर्टिकल इज जनरली यूज्ड बिफोर अ नाउन विच इज फॉलोड बाय ऑफ, ऑफ के बाद अगर नाउन है तब हमें क्या लिखना है, आर्टिकल द। दिस लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल विलेज, ऑफ के बाद आया इसलिए द होल विलेज, क्लियर। नेक्स्ट, द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, रिवर्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स एटसेट्रा। द शिप क्रॉस्ड द पैसिफिक ओशन, ओशन के आगे हमें द लिखना है। द सहारा डेजर्ट is a famous desert, ठीक है। The definite article is used before the name large public building. They visited the Taj Mahal, ठीक। तो public buildings हो, large public buildings, उसके लिए भी the article use। Next, the definite article is used before the superlative adjective. Superlative adjective के सामने भी आगे भी हमें the का use करना है। He is the best boy in the class, the best, ठीक है। EST वाले जो भी वर्ड्स हो उसके आगे हमें सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल द लिखना है। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव सच एज रीच, पुअर, डेफ, डम, ब्लाइंड एटसेट्रा। यूज देम एज नाउन्स। द रीच एंड द पुअर, रीच और पुअर दोनों के सामने हमने क्या लिखा, द लिखा। वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री और कॉन्टिनेंट। द इंडियंस, द यूरोपियंस, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें नेशनलिटी दिखाने के लिए भी द यूज करता है। फिर वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स एंड शिप्स। द राजधानी एक्सप्रेस, द क्वीन एलिजाबेथ,
ठीक है, शेप का नाम है ये ना, इसके आगे भी हमें द लिखना है. नाउ लेट्स सी द इंडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन. The indefinite articles are used when we talk about a people in a general or indefinite way. Okay, indefinite way में अगर हम यूज कर रहे हैं तब हमें आर्टिकल ए या एन का यूज करना है. ठीक है, द आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स विच बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स. एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विथ द वॉवेल साउंड्स. दिस यू नो वेरी वेल, राइट? ही इज अ यूरोपियन. This is a unique idea. European E is here, E is vowel, then also A is used, but E European sounds European, so European is not a vowel sound. ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है. We use an before words which begin with a vowel sound, that you know very well. Already I have explained. The girl bought an orange, O. Some words begin with a silent H, so we use N before them. He is an heir to the throne, heir to the throne. तो यहाँ पे E से heir बोल रहे हैं ना, इसलिए N यूज हुआ. He is an honest man, O बोल रहे हैं ना, इसलिए N. We use A और N before singular countable noun. काउंट कर सकते हैं, सिंगुलर है तो उसके आगे हमें A लिखना है, A या N. Kolkata is a big city. The dog is an animal. Clear? Let's go ahead. We use A or N before the names of occupations and professions. He is a pilot. He is an engineer. When use of a before little and few, there is a change in the meaning of these words. A few is used with plural countable nouns. Remember, plural countable nouns. And a little with uncountable nouns. Few means not many, while a few means a small number. Little means not much, while a little means some. Few people visit this temple now. I know a few students. ठीक है, means little bit, थोड़े बहुत. ठीक है, countable. So remember this thing also. Next, we use an before an adjective in a noun phrase. She is a good girl, a good girl. ठीक है, then we use n with abbreviations beginning with the following letters A, E, F, H, I, L, M. abbreviations के लिए. ठीक है, तो his father is an MP. M से start हो रहा है, M. ठीक है, तो MP. He is an NRI. N से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है. नेक्स्ट, वी यूज द इनडेफिनाइट आर्टिकल बिफोर सर्टेन नाउन्स कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट. शी बॉट अ नाइफ एंड फॉक. ठीक है, अ नाइफ सिंगल यूनिट के लिए. द ओल्ड लेडी हैड अ कप एंड सॉसर. नाइफ एंड फॉक दोनों साथ में आता है, कप एंड सॉसर दोनों साथ में आता है, पर सिंगल यूनिट है तब हमें आर्टिकल ए यूज करना है. क्लियर? लेट्स गो अहेड. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव्स determiners. Now demonstrative determiners we are going to see. The fifth one, demonstrative determiners, these, that, those. The demonstrative determiners are used to talk about persons or things that have already been mentioned. पहले से ही मेंशन किया हो, उन सब के लिए हमें these, that, those means demonstrative determiners का यूज करना है. These and these refer to the things that are near, and that and those are used to refer to the things that are at a distance but can be seen. We lived in this house for 4 years. She bought these books. Those boys are very mischievous. I like this school. I met her this week. ठीक है, these or those. This and that are used for singular nouns. These and those are for plural nouns. Can you lift that box? These boys have done their work. So remember this thing.
Next is possessive. Possessive determiners. My, our, your, his, her, its, their. The possessives are used to show possession. Possession दिखाने के लिए possessive determiners का use होता है. He is my uncle. My, मेरे uncle. Possessive. Your daughter. ठीक है, possession. What is his name? उसका name क्या है? His, possession. Their house, उनका house, possession. तो possession दिखाने के लिए जो words use होते हैं उसे possessive determiners कहा जाता है. Next, ordinals. First, second, next, last, etc. The ordinals show what position something has in a series. Number दिखाने के लिए, rank दिखाने के लिए. He is the first boy who has joined the school. First. I shall meet him the next week. Next week मिलूंगा. तो यहाँ पे क्या दिखाने के लिए? पोजीशन दिखाने के लिए ये ऑर्डिनल्स डिटर्मिनर्स का यूज होता है. नेक्स्ट इज कार्डिनल्स. 1, 2, 3, 100 एक्सेट्रा नंबर्स, राइट. कार्डिनल्स आर ऑर्डिनरी लाइक 1, 2, 3 एक्सेट्रा. दे शो हाउ मेनी ऑफ समथिंग, कितने लोग हैं, कितने, ठीक है, क्वांटिटी दिखाने के लिए यूज होता है. देयर वर ओनली 10 बॉयज इन द क्लास. ठीक है, नंबर 10 बॉयज. ही हैज 2 डॉटर्स. ठीक है, तो नंबर्स दिखाने के लिए कार्डिनल्स का यूज होता है. देन नेक्स्ट इज क्वांटिफायर्स. मच, सम, सेवरल, अ लॉट ऑफ, बोथ, ऑल, एटसेट्रा. द क्वांटिफायर्स रिफर टू द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स और अमाउंट ऑफ समथिंग. देयर वर सम पीपल एट द एयरपोर्ट. सम पीपल, थोड़े बहुत लोग. दे हैड इनफ गेस्ट ऑलरेडी. ठीक है, इनफ गेस्ट, जितनी ज़रूरत है उतने. तो ये सारे क्या है? क्वांटिफायर्स जो दिखाते हैं क्वांटिटी. ठीक है, तो आपको याद रखना है. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव्स. ईच, एवरी, आइदर, नाइदर. डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स रिफर टू ईच सिंगल मेंबर ऑफ अ ग्रुप. जितने भी मेंबर्स है सबकी बात कर रहे हो तब डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स का यूज होता है. ईच इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द मेंबर ऑफ ग्रुप इंडिविजुअली. जितने भी मेंबर्स हो पर इंडिविजुअली बात कर रहे हो तब ईच का यूज होता है. एंड एवरी व्हेन वी मेक अ जनरल स्टेटमेंट. और एवरी कब यूज होता है? जब जनरल स्टेटमेंट हो तब. बोथ आर फॉलोड बाय अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. ही मेट ईच गेस्ट. जितने भी गेस्ट थे उसमें से सबको वो मिला. ईच गेस्ट. द मिनिस्टर विजिटेड एवरी फ्लड अफेक्टेड एरिया. सभी. ठीक है, तो दीज आर द ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव determiners. Either is used to talk about two things but usually indicates that only one of the two is involved. दोनों की बात करते हैं पर दोनों में से एक का इन्वॉल्वमेंट है वो दिखाते हैं. Either of the two girls should come here. दो में से कोई एक यहाँ पर आओ. Neither is the negative of either. Neither member came to attend the meeting. कोई भी नहीं. Either पॉजिटिव बताता है, neither नेगेटिव. Either can also mean both. People stood in either side. Either side mean both the sides of the road. Neither is followed by a singular noun. Neither boy said anything. दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला. Neither answer is correct. दोनों में से एक भी आंसर करेक्ट नहीं था. क्लियर? Now next is interrogatives determiners, the last determiners. The last determiners, interrogative determiners, which we have to learn. Interrogative, what, which, whose, WH से जो start होते हैं सारे. The interrogative determiner are used for asking question. What subjects are you studying? Which color do you like the most? Whose house is this? Clear? This you know very well. Now let's see exercise. Blank books are missing from the library. तो यहाँ पे blank means countable books को count कर सकते हैं. तो क्या आएगा? Some books. Some books are missing from the library. She has not solved blank sums. तो any sums तो आएगा नहीं. Sums है इसलिए तो many sums. Third, this mine but that is yours. any तो आएगा नहीं.
ब्लैंक बॉयज हैव डन देयर वर्क, बॉयज है दैट तो सिंगुलर के लिए यूज होगा और बॉयज है इसलिए दीज बॉयज। ही डिडंट मेक ब्लैंक प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस को तो काउंट कर नहीं सकते इसलिए मच प्रोग्रेस। ही हैज फॉरगॉटन ब्लैंक ऑफ द डिटेल्स, तो यहाँ पे ब्लैंक ऑफ द डिटेल्स है ना, तो थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, सम ऑफ द डिटेल्स। नेक्स्ट, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विजिटेड फ्लड अफेक्टेड एरिया, तो एवरी फ्लड अफेक्टेड एरिया। ब्लैंक विला इज दिस, हुज विला इज दिस, ठीक है, ये रहा, देखो सेम क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट, ही इज द ब्लैंक बॉय हु हैज जॉइन दिस जिम, तो ही इज द फर्स्ट बॉय, ठीक है। नेक्स्ट, आई मेट हर दिस वीक, दोज वीक तो होगा नहीं, क्लियर। सो दिस इज द एक्सरसाइज। आई होप you all are understood about the determiners and do not have any query. But then also if you find any query while reading or watching this video, you can contact me on my number 9033255323 and 83200 60822. Thank you. Have a nice day.